Recording on. Yeah. Atma Namaste everyone. Radhe Radhe. I welcome you all on my numerology course, Vedic numerology course. It's a long, beautiful journey, mystical journey, I would say, and we'll all together join hands and unfold the various mysteries that are lying underneath this name, Vedic numerology. So I welcome you all on this beautiful journey. Just will embark on this and we'll continue it further. And यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि I'm the teacher and you are students. We'll all learn together, grow together, and unfold all the mysteries. So all of you are free to unmute yourself, ask any questions whenever you feel like, and ask any doubts in future also. You'll get my support. And definitely, yes, I also learn from my students, participants, friends, relatives, from wherever I can learn. So आप लोग भी अपने इनपुट्स वैल्यूएबल इनपुट्स जो भी दोगे मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशियस रहेंगे. So yes friends, so welcome everyone. Before we start, I would definitely want my participants to introduce themselves so we know each other well and we become friends very easily. So let us start from Anil ji. So Anil ji, we would definitely want to know your introduction, all of us. Pranam Didi. Uh, I'm Anil Sharma. I'm basically CEO of a company, of a software company. My company, develops products in e-learning, basically e-learning platforms. So like Byju's, something like Byju's, and so that's how it is. And I think I know you for about a year now, Yes. and I've been very, very, impressed and touched by what you do and your knowledge and the way you've My pleasure. yeah. So I always wish to be part of this, and it's my pleasure today. I'm part of this. So very happy to be here. So thank you so much for making me part of this program. Thank you so much, Anil ji. And Anil ji, we would also like to know the expectations you have from this course. Like you want to take it further as professionally, or you want to practice more on it. Like, what are your See, expectations from this course? yeah, when someone comes to a mentor like you, definitely the expectations are professional, right? So आपके पास आके अगर मैं प्रोफेशनल नहीं बना तो फिर कहाँ जाके बनूंगा? तो definitely so far it has not been, it has been more of a hobby. But if it if it turns that way that I get an opportunity, so definitely I think after this course and after this knowledge, I'm pretty sure I can start practicing as a profession. I'm very Yes. confident about it. Okay, okay. So nice to know that. Thank you so much. Shweta ji? Yeah, ma'am. Hi, this is Shweta. I'm a tarot card reader and a crystal healer too. I would not say I'm a numerologist because this is half knowledge I have for now. But from now, I will gain full knowledge of numerology and then I'll call myself a numerologist. So, yeah, this is me, a problem solver also because I solved many of problems of many of people. So, yeah, I would like to call myself a problem solver also. And as you know, ma'am, I never ever expect anything from any class. So there is no expectations. I just want to grasp your knowledge inside me to help others as well as you are already helping. Thank Thank you. you so much, Shweta ji. So nice and kind words, Anil ji and Shweta ji, both of you. Mradula ji, we want your introduction. Yeah. Hello, I'm Ridula Karve. I'm an handwriting analyst, signature analyst, and drawing analyst. I've done numerology, but I want to learn more. And I came across Rashmi ji through because she's done drawing analysis from me. So I happened to meet her, and her knowledge in this field is tremendous. So after when I came to know that she's taking up this course, so I really was looking forward to learn from her. I'm basically, I like to help people a lot, and this is one more this thing which can help me gain my knowledge and a way of helping people in some different this thing modality with different modality. That's why I enrolled for this course. Thank you so much, ma'am. Like
Madhula ji was my teacher as a drawing analyst, and she's wonderful in her work. So Thank you so generally, I much. tend to call her ma'am. बीच बीच में मुंह से आ जाता है. Yeah, But we are good friends also. yeah, we are friends. Yeah, more of good friends. So Yeah. please now I'm your student, so please call me Mridula. Yeah, we are all friends. Like, we'll all learn and grow together. Yes, That's the motto of the class. absolutely. Yeah. So Geeta ji will be joining us shortly, as she is having some urgent work. Yeah. So starting with the course, जैसे कि हम सब जानते हैं वैदिक, it would be a mixed language course like Hindi and English. So I believe all my participants are truly comfortable with it. Okay, thank you. Occult science में हमारे बहुत सारे modalities होते हैं, जैसे some of them are predictive, some of them are software driven, and some of them are also intuition based. So उसमें सबसे पहले जिसको प्राथमिकता दी गई, जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, एज ओल्ड ट्रेडिशन, दैट इज एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन आवर एंशिएंट हिंदू रिलीजन वाया एजेस. हमारे जो ऋषि मुनि थे उनके पास इसका बहुत ज्यादा डीप नॉलेज था, बहुत ज्यादा गूढ़ ज्ञान था उनके पास में. पाराशरी जो थे उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की सबसे पहले, मतलब ही वाज द फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी. आज भी उनके नाम से पाराशरी एस्ट्रोलॉजी, पाराशरी ज्योतिष बहुत फेमस है. भृगुनंदी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, इस तरह से बहुत सारे मोडालिटीज है एस्ट्रोलॉजी में भी. So astrology, as we all say, it is the mother or the father, we can say, of all the occult science practices. उनके उसके पास से सारे occult sciences हमारे पास में आए हैं. One of them being numerology. Numerology, also known as the Ank Jyotish or the Hindu Jyotish. It is a branch of astrology. Astrology में basically we take 3 inputs. We take the date of birth, the time of birth, and the place of birth. Whereas in numerology, we take different inputs, of course. We take the date of birth and we take the name of the native. These 2 inputs are pretty important for us. And the third input which we take in numerology, in our modern day numerology, that is the mobile number of the native. Because now mobile has become a very integral part of our lives. We can't survive without a mobile. मतलब एक छोटा बच्चा जैसे 2-3 years के भी जो होते हैं, जो थोड़ा मोबाइल देखना समझ जाते, they also won't have their food without viewing the mobile. Mothers, young mothers are very much, you know, उनके लिए बहुत बड़ा एक फंडा होता है कि मोबाइल दे दो हाथ में and they will easily have the food. So mobile has become mobile number. It also plays a very important role in our modern day numerology. Gradually, we will also be covering the mobile numerology portion also in this course. And so basically in numerology, we take 3 inputs. Numerology, again, we have different kinds of modalities. Like the most well-practiced modalities are the Vedic numerology, the Loshu numerology, and the Pythagorean numerology also. We also have Kabbalah numerology. We have the Hebrews. The Hebrews, they used to practice this Kabbalah numerology. It's also known as the Hebrew numerology. Numerology के बहुत सारे modalities है, लेकिन basically Loshu numerology and the Vedic numerology, these are practiced very widely all over the world. Loshu numerology के लिए ये कहा जाता है कि it is a Chinese form of numerology because it was basically well practiced more in China and the adjoining countries. But when we go deep into this research, we come to know Loshu numerology में हम जो grid बनाते हैं 492, 357 and 816, वो जो ग्रिड है वो एक्चुअली इट इज लक्ष्मी यंत्र, जो कि कछुए के शेल पे हमें सबसे पहले वो पाया गया था. दैट वाइज टर्टल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर न्यूमरोलॉजी. टर्टल का जो वो बहुत ऑस्पिशियस उसका एक एस्पेक्ट है. इट इज यूज्ड इन रेमेडीज ऑल्सो. एंड दैट ग्रिड, इट इज नोन एज अ लोशु ग्रिड. And it is also known as Chinese numerology, but actually it has originated from our Sanatan Hindu Dharma only. हमारे हिंदू धर्म का ही वो एक हिस्सा है, because लक्ष्मी यंत्र has been practiced in our Sanatan Dharma from age old. मतलब बहुत सालों से, बरसों से, सदियों से हमारे यहाँ पे लक्ष्मी यंत्र मौजूद है. लेकिन अभी जो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी का बात करेंगे, वो हमारे वेदों से, पुराणों से जो न्यूमरोलॉजी आया है वाया एस्ट्रोलॉजी, हम उसे वैदिक न्यूमरोलॉजी कहते हैं. ना वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो है
I'll just give me a second to share the screen. Yeah. Vedic numerology जो है, it is the basically understanding the language of numbers. हर नंबर कुछ कहता है, हर नंबर की एक लैंग्वेज होती है, हर नंबर की एक भाषा होती है. We have to understand the language of numbers. नंबर के न्यूमरोलॉजी के हर नंबर के साथ में, हर चीज के साथ में उसमें एक तो मिस्ट्री छुपी हुई है. वो नंबर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. सबसे पहला एस्पेक्ट होता है उसका प्लैनेटरी एस्पेक्ट, कि वो नंबर कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं. सेकंड एस्पेक्ट उसका होता है कि उसके अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स आते हैं. एंड थर्ड एस्पेक्ट जो उसका होता है, जिस एस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा जनरली ध्यान हमारा नहीं जाता है, वो होता है उसका शेप का एस्पेक्ट, द ग्राफोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द नंबर. वो नंबर जैसे मृदुला मैम वुड बी एबल टू रिलेट टू इट वेरी इजीली. कोई भी नंबर को हम कैसे लिखते हैं, वन को हम कैसे लिखते हैं, वन अपने आप में कैसे लिखा जाता है, दैट ऑल्सो स्पीक्स अ लॉट अबाउट दैट नेटिव. तो दीज फ्यू स्मॉल माइन्यूट थिंग्स जब हम अपने प्रेडिक्शंस में, हम अपने स्टडीज में जब हम इसको कंपेयर करते, जब हम इसको कंबाइन करते एक साथ में, वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ थिंग्स. बहुत सारी चीजें जो हमारे when we give all these combined predictions together, combined traits together to a person or a native, या हम अपनी स्टडी भी करते हैं, तब हमें बहुत ज्यादा चीजें हमारे पास में आती है सामने. नॉट दैट कि ठीक है एक नंबर है तो उसके ये एट्रीब्यूट्स होंगे, वो एक जनरल सभी जानते हैं कि एक नंबर है तो उसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे. बट वैदिक न्यूमरोलॉजी आपको एक बहुत डिफरेंट एंगल, एक डिफरेंट एस्पेक्ट देता है कि आप समझ पाए कि उसमें और क्या निकाल सकते हैं हम उसके अंदर से. यस, सो मूविंग फॉरवर्ड. या सिलेबस मैंने शेयर किया था, फिर भी एक जस्ट एक थिंग, एंड आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट ऑल माय पार्टिसिपेंट्स टू कीप अ नोटबुक हैंडी विद यू. कई बार होता है कि ऑल्दो मैं आपके साथ पीडीएफ नोट्स एंड रिकॉर्डिंग्स सारे शेयर करूंगी, बट कई बार होता है कि बात करते करते मुंह से कुछ और भी एक्स्ट्रा भी आ जाता है सामने. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग को जहाँ भी कुछ लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, या आप लोग को ये कुछ डिफरेंट लग रहा है, तो प्लीज टेक इट डाउन, सो इट बिकम्स अ रेडी रेकनर फॉर यू. फिर जब आप करने बैठते हो ना प्रेडिक्शंस, तो वो छोटी छोटी चीजें आपको बहुत 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 हेल्प करती है. दैट्स माय ओन एक्सपीरियंस आई वांटेड टू शेयर. जी, या yeah, sure. अनिल जी, यू वांटेड टू से समथिंग? No, I'm saying yeah, sure. I'm noting down on computer itself. Yeah, So. yeah, okay, yeah. So we'll cover characteristic of numbers, number combinations, dasha system, in which we will calculate all the DBAs, महादशा, अंतरदशा and प्रत्यंतर दशा. हम उसको DBA क्यों बोलते हैं? दशा, भुक्ति, अंतरा. जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कौन से प्लैनेट की महादशा चल रही है, उसके साथ में किसकी अंतरदशा चल रही है. अंतरदशा में अगेन वी हैव द स्मॉलर प्रेडिक्शंस, द स्मॉलर ड्यूरेशंस, उसमें उसको हम कहते हैं प्रत्यंतर दशा. These helps us to understand कि नेटिव का exactly, suppose कोई मुझे पूछेगा कि मेरी जॉब कब लगेगी, then we will say कि उसकी जॉब, अगर उसकी जॉब चली गई है ना, उसकी जॉब कब लगेगी, then we will check exactly from the DBA किसकी महादशा है जिसकी वजह से उनकी जॉब चली गई. अंतरा किसका आया हुआ, तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है कि उनकी जॉब वापस लगेगी और he will diversify into something else. And then comes the प्रत्यंतर दशा. लगेगी तो कब लगेगी एग्जैक्टली, दे वुड वांट एग्जैक्टली भी अगर नहीं बोल पाओगे तो यू दे वांट अ टेंटेटिव टाइमिंग. इस महीने में लगेगी, अगले महीने में लगेगी, 4 महीने बाद लगेगी. प्रत्यंतर दशा हम लोग को वहां हेल्प करती है कि हाउ डू वी गिव देम अ टेंटेटिव ड्यूरेशन और टेंटेटिव टाइम कि हाँ इस टाइम पे बहुत फेयर चांसेस है. Keep your eyes and ears open, appear for all the interviews, and definitely are going to crack any one of them that way. इवेंट्स इन लाइफ जो हमारे पास बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं, वो रहते हैं हमारे जनरली हेल्थ, फाइनेंस, प्रॉपर्टी रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड, मतलब जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड. उसके अलावा बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे कुछ किसी भी तरह का व्हीकल लेना है, तो मैं कब लूं, कौन से दिन लूं,
हाउस लेना है तो मेरा हाउस नंबर कौन सा होना चाहिए, किस दिन मुझे लेना चाहिए, किस दिन मुझे डाउन पेमेंट करना चाहिए, कौन सा दिन मेरे लिए अच्छा है, कौन सा महीना मेरे लिए अच्छा है. These small things matter a lot for us because people look upon us as occultists in a very different way. We are, for them, we are people who know next to God. वो चार्ट देके हम कुछ चमत्कार करेंगे, एक जादू की छड़ी घुमाएंगे and things will start getting into shape. Right. तो ये चीजें बहुत ज्यादा लोगों के मन में होती है. हम भी जैसे जब अपने सीनियर्स को देखते हैं या हम जो हमारे फैमिली एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनके पास जाते हैं, तो डेफिनेटली जब इंसान परेशान होगा तभी उनके पास जाता है. So we have high expectations from them. So to meet the expectations, it's very important कि we do our homework, our grooming in a very, very well defined way. कि हमें छोटी चीजों की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें. And see, it all depends on the participants also कि आप कितनी practice कर रहे हो, आप कितनी उन one to one चीजों को relate करके और उससे कितना ज्यादा आप आगे उससे बढ़ पा रहे हो. Yes? Yeah. So name numerology, yes, it also plays a very important role. We'll cover name numerology in this. We'll cover all the lucky numbers, days, dates, colors, and of course remedies. Remedies with the mobile numerology yantras, they form a very important part of remedies. Apart from that, we have several remedies in numerology, astrology, any form of occult. वो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको किस क्लाइंट के साथ में हमें कैसे कब यूज करना है, किसको कितनी जरूरत है. And of course, इस जगह पे we also have to take care of the religion of the client. Because if it's a Muslim client, you can't ask them to do Shiv ji की पूजा. In that case, we have to take care. अगर आपका client Christian है, तो आप उनको कहोगे तुलसी की माला धारण कर लीजिए, वो नहीं धारण कर पाएंगे because उनका religion उनको allow नहीं करता है. वो वाली चीजें भी हमें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है. Yes, and then comes a very important aspect, that is mobile phone numerology. Mridula ji is not there in the meeting, क्या? वो उन्होंने एक चैट डाला था कि सॉरी मैम आई हैव टू लीव ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क. इनफैक्ट मैं उसी लिए पूछना भी चाहता हूँ दीदी कि देखिए मृदुला जी अभी नहीं है एंड आई थिंक गीता जी ने भी ज्वाइन नहीं किया है. तो आप मतलब आई जस्ट वांटेड टू आस्क, इज इट ओके, आप कंटिन्यू करना चाहते हो या इसको हम वेट करें उनका या रिस्केड्यूल, इज देयर एनी थॉट लाइक दैट? तो आई एम ओपन फॉर दैट. या आज तो हम जैसे इट्स अ इंट्रोडक्टरी क्लास, तो आज जी. तो हम न्यूमरोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स का हम लोग क्या कवर करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट इट. एंड टाइम रहा तो वी विल जस्ट टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द प्लैनेटरी. पूरा तो कवर नहीं हो जाएगा प्लैनेट्स का. तो लेट अस कंटिन्यू विद द क्लास. दे कैन ऑलवेज वॉच द रिकॉर्डिंग. परफेक्ट. प्रेडिक्शंस पार्ट में ये प्रॉब्लम आती है कि क्लास में सोने से आपको दिक्कत होती है. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इतना होगा नहीं, सो वी कैन वेरी वेल कंटिन्यू. श्योर श्योर. थैंक्स फॉर द कंसर्न. वेलकम भाभी. Yeah. So coming to the numerology part, we have 9 numbers in our number plane, 1 to 9. And all these 9 numbers, they represent a planet. And they are well related to planets. So जैसे जो number जिस planet को represent करता है, उसके attributes, उस planet के attributes definitely उनके अंदर होते हैं. तो जो native जिस number को represent, जिससे rules होते हैं, चाहे उनका बेसिक नंबर आए चाहे उनका डेस्टिनी नंबर आए, उनके अंदर उस प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स होते हैं. वैदिक न्यूमरोलॉजी में द बेसिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अनलाइक लोशो न्यूमरोलॉजी, वी डोंट हैव अ कुआ नंबर ओवर हियर. लोशो न्यूमरोलॉजी में वी हैव द थर्ड मैजिकल नंबर आल्सो, दैट्स अ कुआ नंबर. वैदिक न्यूमरोलॉजी में वी डोंट हैव एनी कुआ नंबर ओवर हियर. And the grid is also different over here. लेकिन उनका कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो सेम होता है. बेसिक नंबर जो होता है, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, जो फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ एंड द डेट विच वी आर बोर्न, वही हमारा बेसिक नंबर होता है. इफ इट इज अ कंपाउंड नंबर, we'll again re-add it and bring it to a single number. That is our basic number. And destiny number, it's again the same. We have to calculate, we have to take the sum total of all the digits present in the entire date of birth. That is DD plus MM plus YYYY. That is our destiny number. अब जो हमारे बेसिक नंबर होते हैं उनके बहुत सारे नाम होते हैं अलग अलग न्यूमरोलॉजी के फील्ड्स में. They have been given different names, like we also call them the basic number
or the single number, or we also call them the मूलांक, क्योंकि वो हमारा बेसिक नंबर है. बेसिक नंबर ऑलवेज डिटरमिन्स कि वो इंसान कैसा होगा, उनका नेचर कैसा होगा. लोशो न्यूमरोलॉजी में जो अरविंद सूद के स्टूडेंट्स हैं वो उसको ड्राइवर के नाम से भी जानते हैं. जैसे हमारी लाइफ की एक गाड़ी है रिप्रेजेंट्स, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा था, लाइफ हमारी जो है वो गाड़ी की तरह है, एंड जो हमारा बेसिक नंबर है इट इज द ड्राइवर. वो ड्राइवर उस गाड़ी को चलाता है एंड वो उसको डिटरमिन करता है कि वो गाड़ी किस तरह से चलेगी, वो कहाँ उस गाड़ी को लेके जाना है वो उस ड्राइवर के हाथ में होता है. सो इसको हम ऐसे देखते हैं कि जो इंसान का जो नेचर होता है, अगर कोई इंसान ही मे बी वेल इक्विप्ड विथ ऑल द गुडीज ऑफ लाइफ, सब कुछ है उनके पास है, मगर उनका नेचर अगर खराब है तो कहीं ना कहीं पे दे लैग बिहाइंड इन लाइफ. तो मतलब ड्राइवर खराब हो गया वहां पे. एंड वही होता है कि इंसान एक मीडियम लाइफ जी रहे बट उनका नेचर बहुत अच्छा है, तो दे ऑलवेज हैव अ ब्राइट चांसेस टू upgrade themselves because they generate good karma via that. So the driver plays a very important role in any kind of numerology. That is the basic number or the single number as we say. Then comes the destiny number. It is also known as the life path number or the bhagyank. Yes, भाग्यांक और द डेस्टिनी नंबर हम उसको क्यों बोलते हैं, हमारी जो पूरी जिंदगी है वो कैसी होने वाली है, हमारा जो लाइफ पाथ है, मतलब हमारा जो जीवन का रास्ता है वो कैसा होने वाला है, दैट द डेस्टिनी नंबर डिटरमिन्स, वो उसको सेट करता है कि हमारा आने वाला जीवन कैसा होने वाला है. इट इज ऑल्सो नोन एज अ कंडक्टर नंबर. कंडक्टर क्या होता है, वो कहीं ना कहीं ड्राइवर को इंस्ट्रक्शंस देता है, घंटी बजाता है बस में, या उनको इंस्ट्रक्शंस देता है, बेल बजाता है कि गाड़ी यहाँ पे रोकनी है, यहाँ पे क्लाइंट्स है वो चढ़ेंगे, यहाँ पे पैसेंजर है वो बोर्ड करेंगे बस में, या फिर यहाँ पे गाड़ी नहीं रोकनी है, वो उसको डायरेक्शंस भी देते हैं कि यहाँ पे कट है, यहाँ पे घुमानी है गाड़ी, स्ट्रेट जाना है, ये हाईवे है तो स्पीड, मतलब he helps him to drive that cab or that vehicle. So it again plays a very important role. So in short, we can see the driver number and the conductor number or the basic number and the destiny number, both are very, very important in one's life. Destiny number जो होता है वो हमारी life में it becomes activated from the age of 30 to 35. And in some special cases, it may also gets activated earlier. उस special cases क्या होते हैं, क्या तो उस नेटिव की लाइफ में कुछ एक ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आता है या कोई बड़ा एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से दे स्टार्ट टेकिंग द लाइफ डिसीजंस देमसेल्व्स. फॉर एग्जांपल, इफ आई से 20-year-old child, 20 to 25-year-old child, he loses his father or either of his parents, and he is forced to become independent, he is forced to become an earning member for that family. उसके केस में डेस्टिनी नंबर, yes, it starts playing their role, it gets activated. एक लड़की है, she is around 23-year-old, she gets married and उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई because उनकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वहां पे ऐसा कोई नहीं जो उनकी केयर कर सके. She becomes her own guardian. Yes, in her case also the destiny number gets activated. So we can't always go by the rules कि डेस्टिनी नंबर तो भैया 30 साल के बाद ही एक्टिव होगा, अभी तो हम इनको बेसिक नंबर के हिसाब से जज करेंगे. We can't do that. Being occultist, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि we also have to check the background of the client, कि उनका बैकग्राउंड क्या है. उसके बाद we can decide कि although इनकी एज कम है, वो भले ही 90 born हो, 92 born हो, लेकिन उनका डेस्टिनी नंबर एक काफी लंबे समय पहले ही एक्टिव हो गया था. So these things also have to be taken into consideration when we are checking any client's chart. Generally भी से 20-22 साल का कोई लड़का है, लड़की है, so भी से अभी तो इनका बेसिक नंबर ही एक्टिवेटेड, डेस्टिनी तो उतना एक्टिव हुआ नहीं. Yes, डेस्टिनी की जो ट्रेड्स है उनकी चार्ट में जो नंबर प्रेजेंट है, डेफिनेटली उसके ट्रेड्स उनके अंदर आएंगे, लेकिन वो उतना ज्यादा रूल नहीं करता है उनको. Whereas in these cases it starts ruling also that person. ये केसेस ज्यादा प्रोमिनेंट हमें कब मिलेंगे, जब हम देखेंगे कि वो क्लाइंट के दिस मैलिफिक्स की दशा है, जैसे राहु केतु शनि.
उस केसेस में उनकी जो दशा आती है उसमें कुछ चीजें ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है. I'll be speaking about all of them when we go in the predictions part. Yes. So moving further. Yeah. Then comes our name number. Each and every person is given a name the moment they are born. भले वो उनका एक short name हो जो उनके parents उनको प्यार से दे रहे हो, सोनू मोनू etc. कुछ भी दे रहे हो, बड़ा होने के बाद उनको राम श्याम कुछ एक proper name मिला हो. Whatever name they are being called by, whatever name they are being addressed by, numeric value of that name, it starts resonating with their aura. Because एक नाम जो होता है ना वो इंसान के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. दूर से भी कोई उस नाम से किसी को बुला रहा होगा, उनके कान में पड़ेगा तो बोलेंगे अच्छा मेरा नाम कोई बुला रहा है. भले ही उनको ना बुलाया जाए मगर उनको लगेगा मेरा नाम कोई बुला रहा है. So that way, so each and every person they starts resonating with the name very fast. छोटा बच्चा जो मुंह से बोल नहीं सकता लेकिन अगर हम उनको कोई नाम देके रखे हम पीछे से बुलाते तो they start responding. They start turning their eyeballs, turning their limbs that way. So name number again is very important part of numerology. जब भी हम किसी का चार्ट चेक करेंगे, don't forget to check the energy of the name also. You may not suggest a name spelling rectification for that client, but yes, उनके name में जो भी numerics है, जो भी alphabets है, उसकी जो numeric value है, that also plays a very important part in that chart. तो जब भी आपके पास कोई चार्ट आती है, कोई डेट ऑफ बर्थ आती है, आपको उसमें प्रेडिक्शंस देने हैं. ऑलवेज टेक सम टाइम टू स्टडी एंड उसमें आप सब एस्पेक्ट्स को कवर करिए. उनके नेम नंबर को, उनके मोबाइल नंबर को एंड उनके डेट ऑफ बर्थ को, यस ऑफ कोर्स. एंड उसके बाद यू गिव द प्रेडिक्शंस टू सी डेफिनेटली यस योर प्रेडिक्शंस वुड कम टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. अभी सुनने में लग रहा होगा इतना सारा चीज देखना होगा एक चार्ट देखने के पहले, but gradually क्या होगा, it would come into practice and you won't take any time. आपको वो अल्फाबेट्स देख के समझ में आएगा. अच्छा ऐसे 3 से रूल्ड है, जुपिटर के एट्रीब्यूट्स होंगे इसमें. श्वेता जी like she is S, so she is having the Jupiter attributes. अनिल जी is ruled by number 1. तो उनके चार्ट में भले एक नंबर आए नहीं आए लेकिन उनके अंदर सन के एट्रीब्यूट्स रहेंगे बिकॉज उनके जो नाम का पहला अक्षर होता है ना, पूरा नाम का जो वैल्यू होता है वो तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन फर्स्ट नेम नंबर का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है दैट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नेम न्यूमरोलॉजी अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बट यस दीज फ्यू थिंग्स डेफिनेटली दे वुड हेल्प अस टू गिव एक्यूरेट प्रेडिक्शंस. एंड जब भी आप किसी क्लाइंट को प्रेडिक्शंस देंगे, डिस्क्लेमर पहले ही है, वी आर ऑकल्टिस्ट एंड वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स. वी आर नो वे मैजिशियंस और वी आर नॉट गॉड. प्रेडिक्शंस हमारे भी एक लिमिट है 80 to 90%. यू ऑलवेज से 80 to 90% प्रेडिक्शंस ही हमारे सही होंगे. यस, सो एंड रेस्ट उनके अपने कर्मास भी हैं. कई बार होता है यू गिव देम द बेस्ट ऑफ रेमेडीज, स्टिल थिंग्स डोंट वर्क आउट विद देम. तो यस, कर्मास आर वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी इंसान को रेमेडीज करने के लिए दे हैव टू बी वेरी faithful regarding those remedies. उनको बहुत faith रखना होगा remedies में, उनके intentions fair होने चाहिए. And definitely yes, they always have to improve on their karmas because we all are human beings and we all have some negative and some positive baggage with us. तो ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा important है. Yes, the calculation of basic number and the destiny number, these we have already discussed. And I think आप लोग दोनों एक लोशो बैकग्राउंड आप लोग को, मतलब you all know the basics of numerology, आप लोग दोनों को ये चीजें पता है. Yeah, this is the Vedic grid, Vedic chart or the numeroscope as we see. 319-675-284. This is our Vedic chart. इस चार्ट के इर्द गिर्द ही हमारा सारा वैदिक न्यूमरोलॉजी घूमता है. लोशो में जैसे हमारे पास 492, 357, 816 होता है,
यहाँ पे the placement is different. It's 319,675,284. ये हमारी नेजल चार्ट है. इसके ऊपर हम जो भी हमारे बेसिक नंबर्स, जैसे हम लोशु में नंबर्स प्लेस करते हैं, एग्जैक्टली सेम तरह से हम यहाँ भी नंबर्स प्लेस करेंगे. एंड वी विल ट्राई रीडिंग दैट चार्ट. आप लोग को दोनों को कहीं भी कोई भी डाउट होगा, both of you are very free to ask me any questions. Yeah. Sure. Yeah, thank you. It's just an example I have taken कि हम लोग को कैसे चार्ट में नंबर्स प्लेस करना है. Of course, yes, we have. आप लोग को दोनों को उसकी नॉलेज है. फिर भी आप लोग को कहीं कोई डाउट होगा, डेफिनेटली यू कैन आस्क. बेसिक नंबर को प्लेस करने का उसका एक तरीका होता है. बेसिक नंबर इफ इट कम्स बिटवीन 1 to 10, जहाँ भी हमारे बेसिक नंबर में जो सिंगल नंबर्स के बाद अगर 0 आ रहा है तो 1 प्लस दैट नंबर इट कम्स टू द सेम नंबर, तो उसको हम एक ही बार प्लेस करेंगे उस चार्ट में. लोशु में जैसे हम करते हैं, इट्स द सेम रूल ओवर हियर. उसको हम एक ही बार प्लेस करेंगे. 10, 20 and 30 they are again, वो since वो compound number है, but still they are placed only once if they come in the single number. उसके अलावा जितने भी compound numbers होंगे, we have to re-add them, bring to a single number, and then again we will place them in the chart. दीदी just one question, ये notes जो है, are you going to provide the notes या हम notes लेते रहें basically for everything that you're speaking? नहीं, these notes I'll be forwarding to all of you. मैं आप लोग को भेज दूंगी. ओके, ठीक है जी. कई बार होता है इनके अलावा भी कुछ नॉलेज ऐसी होती है कि जो आ जाती है. राइट, वो तो हम लिख रहे हैं. हाँ जी, वो दैट वी आर राइटिंग. हाँ जी. हाँ. अच्छा, लोशु न्यूमरोलॉजी में हम क्या करते हैं, वी आल्सो टेक द इनपुट ऑफ द सेंचुरी नंबर. वैदिक न्यूमरोलॉजी में ये डिफरेंस है कि वी डोंट टेक द सेंचुरी नंबर. इफ वी टेक अ हाइपोथेटिकल डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ है 23rd of July 1975, तो यहाँ पे वी वोंट टेक 19. वेयरएज अगर इसी का लोशु का चार्ट हम बनाते हैं तो हम यहाँ पे सेंचुरी नंबर भी हमेशा लेते हैं. वैदिक न्यूमरोलॉजी में वी ओमिट द सेंचुरी नंबर व्हेन इट इज टू बी प्लेस्ड इन द चार्ट. लेकिन जब हमें डेस्टिनी नंबर निकालना है, उस समय में वी विल टेक सेंचुरी नंबर इनटू कंसिडरेशन. डेस्टिनी का कैलकुलेशन सेम तरीके से होगा, ओनली द प्लेसमेंट जब हम करेंगे चार्ट में, उस समय हमें सेंचुरी नंबर को इनपुट नहीं करना है. इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, हमें क्यों इनपुट नहीं करना है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि पीपल हु आर बोर्न अंडर द 19th century, all of them have 1 and 9 by default in their charts, default in their date of birth. इसीलिए बोल के उसको ओमिट कर दिया गया था. So इस केस में we omit the century number and we take the rest of the numbers along with the basic number and the destiny number. Perfect. हाँ जी. हाँ जी अनिल जी, आप कुछ कह रहे थे. सॉरी, मेरा माइक ऑन है इसलिए मैं कह रहा था. परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, मेक सेंस. ओके, थैंक यू. मोरेवर लाइक डेस्टिनी नंबर में तो सेंचुरी नंबर को हम ऐड करके वो नंबर निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस अब कोई कहेगा कि उसका एनर्जी उसमें नहीं आया, तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी हम ले लिए, बिकॉज व्हेन वी आर एडिंग द एंटायर डेट ऑफ बर्थ वी आर टेकिंग द सेंचुरी नंबर. तो सेंचुरी नंबर की जो एनर्जी है वी हैव ऑलरेडी टेकन इनटू द डेस्टिनी नंबर, टेकन इनटू कंसीडरेशन. तो अब हमें दोबारा से उसको प्लेस करने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. आप लोग आज मैं आप लोग को नोट्स नहीं भेजूंगी, आई विल बी सेंडिंग आफ्टर द सेकंड क्लास. तो आप लोग की जो वैदिक ग्रिड है ना, आप लोग इसको एक बार कॉपी कर लो. सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्रिड यू कैन ट्राई वेरियस चार्ट्स. अब अपनी फैमिली के अपने चार्ट्स ट्राई करके यू कैन ऑलवेज सी कि वैदिक के हिसाब से उसके क्या वो आते हैं, रीडिंग्स आते हैं उसके. बिकॉज यहाँ पे 319 जो है द अपर प्लेन, इट इज नोन एज द मेंटल प्लेन, वेयरएज वहां पे 492 आता है. Yes, 675 it is a middle plane and 284 lower plane है. इसके हिसाब से भी इनकी रीडिंग्स थोड़ी डिफरेंट आने लग जाती. Yes, एंड अदर रूल्स आर सेम. आई मीन नंबर रिपीट हो रहा है तो आप ऐड करोगे सारे नंबर्स. हाँ, yes.
एंड सेंचुरी को बस इग्नोर करना, बाकी अदर्स हाँ। एंड ड्राइवर कंडक्टर भी ऐड करना है। yes, everything else is same. मैम आप एक बोर्ड पे एक डेट ऑफ बर्थ लेके मुझे बना के बता दीजिए ना कैसे बनेगा। Sure, हाँ मैम, sure, या फिर I'll do नीचे that. वाला एग्जांपल भी है एक्चुअली, वो भी। हाँ, You want to, आप लोग, you want to see the example क्या? whichever way, आप जैसा आपको कन्वीनियंट हो, या Yeah. जैसा। Yeah. Yeah. See, it's a, इससे example से एक बार मैं explain कर देती हूँ. In case you don't understand, I'll put it on the board. ठीक है? Yeah. See, we have taken a example यहाँ पे 23rd of July 1975. तो यहाँ पे जो इनका basic number है वो हो गया 23. 23 को if we re-add, it comes to number 5. 5 becomes a basic number. ठीक है? Then we take a destiny number. Destiny number है 2 plus 3 plus 0 plus 7 plus 1 plus 9 plus 7 plus 5. The sum total of all the digits present in the date of birth. It comes to 34. 33 दिख रहा है मुझे। ये यहाँ पे देखिए, it comes 34 आ रहा है यहाँ पे. ओके ओके, So it comes to 7. अच्छा मैं ऊपर वाला देख रहा था। ओके, Okay, we can take either of them. नो नो इश्यूज, नो इश्यूज, ठीक है, whichever, हाँ. ओके श्योर। हाँ जी. तो अभी हमको इसको अगर चार्ट में लगाना हो, वैदिक चार्ट, तो 319, तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है 2, तो 2 को 2 की जगह पे 284 का प्लेन होता है नीचे, तो हमने यहाँ पे 2 लगाया. देन कम्स 3, 3 का 3 हमने यहाँ पे लगाया. देन कम्स 7, 7 बीच में आता है 6, 7, 5, तो हमने यहाँ पे 7 इनपुट किया. फिर है 19, 19 को हमें नहीं लेना है. Then again comes 7, we put another 7 over here. Then comes 5, we put 5 over here. ये हमारी डेट ऑफ बर्थ को हमने एज इट इज इस चार्ट में पुट अप कर लिया, राइट? राइट, ओके. देन आफ्टर दैट हमने अभी हमें यहाँ पे बेसिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर को भी पुट अप करना. बेसिक नंबर इज 5, we add another 5 over here. Destiny number is 7, we add another 7 over here. So the chart becomes, upper line में सिर्फ 3 है, second line में we have 77755, lower line में we have 2. So this becomes our Vedic chart for this date of birth. ओके। In case it's not clear, I'll just get the whiteboard. क्लियर मैम। Okay. या सेम, या अनिल जी आपको? सेम क्लियर। Okay. Okay. मैं ऊपर वाला देख रहा था, डेस्टिनी नंबर 33। हाँ नहीं, तो ऊपर वाला भी सेम चीज है. इट्स लाइक 14th of July 1974. यहाँ भी सेम चीज है. तो the basic number comes to 1 plus 4, it comes to 5. करेक्ट करेक्ट। And the sum total of the number, it comes to 33. हम्म, So it comes to 6. ठीक है? राइट। 14 को हम यहाँ पुट किए, 1 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 284 का 4 इधर, 1 ऊपर. Then comes 7, 7 की जगह 7 लगाया. 19 को हम ओमिट करते हैं. Another 7 and 4, यहाँ पे वापस 7 लगाया and यहाँ पे वापस 4 लगाया. Then we put the basic number 5, यहाँ पे 5 लगाया. Then the destiny number 6, यहाँ पे 6 लगाया. So in this case, we have 1 in the upper line, 6775 in the second line, and we have 444 in the last line. Sure. ये बना हमारा नेटल चार्ट. अब ये वाली चार्ट हमारी चेंज कब होगी? ये वाली चार्ट हमारी चेंज होगी जब हम इसको सॉफ्टवेयर में डालेंगे. एंड वी विल सी कि इसमें उस समय सपोज हमें किसी साल का देखना है. सपोज वी वांट टू सी दिस चार्ट फॉर द करंट ईयर. करंट ईयर इज 2021. 2021 में इस चार्ट में किसकी दशा चल रही है, किसकी भुक्ति चल रही है, मतलब अंतर्दशा चल रही है, और प्रत्युत्तर में क्या आ रहा है. दैट वी वुड सी वाया दैट सॉफ्टवेयर. ओके, तो हम लोग
11 years का चार्ट एक साथ में हम उसमें देख पाते हैं. We can always change dates and in accordance with our convenience. जैसे हमें जो भी साल का देखना, suppose आपको 2002 का देखना है, so you can always see the chart from 2002 plus 11 years का जो भी आपका reading का आपका एक साथ में आ जाता है, so it becomes really easy for us to understand. मैं अभी आप लोग को सॉफ्टवेयर भी दिखाऊंगी. Sure. ठीक है, कूल है, ये तो क्लियर है. जी. Okay. So to read any chart, सबसे पहले हमारे लिए important है कि we know about the numbers, कि हमारे जो चार्ट में जो नंबर्स है वो कैसे वर्क करते हैं, उनके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, एंड वो हमसे क्या कहना चाहते हैं. तो सबसे पहला जो हमारा नंबर है, नंबर पेन का जो फर्स्ट नंबर है, दैट इज नंबर 1. एंड एज द नेम डिनोट्स, नंबर 1 एक नंबर, पहला नंबर. इट्स ऑलवेज द बेस्ट. किसी भी चीज के लिए हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें देना होता है, हम कहते हैं एक नंबर समान है, एक नंबर चीज है, बच्चा एक नंबर है, क्लास में फर्स्ट आया है. नंबर 1 अपने आप में बहुत सारी चीजें लेके बैठा है, मतलब इट्स ऑलवेज अ ब्लेस्ड नंबर. लेकिन नंबर 1 का भी टाइम प्लेस कंडीशन के हिसाब से नंबर 1 के भी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. जैसे क्लास में एक स्टूडेंट फर्स्ट आता है तो वी से वो फर्स्ट आया, नंबर 1. लेकिन 100 मार्क्स के पेपर में कोई वीक स्टूडेंट एक नंबर लेके आता है, तब हम बोलते हैं यार 100 में से एक नंबर लेके आए हो. नंबर 1 का एट्रीब्यूट्स वहां पे चेंज हो गया. राइट. तो नंबर 1 इज वेरी गुड, लेकिन टाइम प्लेस कंडीशन के हिसाब से भी हमें हमेशा उसको देखना रहेगा. कोई भी नंबर अच्छा या खराब नहीं होता है. ऑल द नंबर्स आर वेरी गुड एंड ऑल द नंबर्स हैव नेगेटिव एट्रीब्यूट्स आल्सो, बट टाइम प्लेस कंडीशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि वो नंबर उस समय में नेगेटिव आपको ज्यादा दे रहे हैं कि पॉजिटिव ज्यादा दे रहे हैं, कि बैलेंस करके दे रहे हैं, कि सिर्फ पॉजिटिव दे रहे हैं. जैसे बहुत लोग सैटर्न के लिए बोलते हैं, अरे शनि का 7.5 आ रहा है, शनि का ढैया आ रहा है, अब क्या होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. अगर आपके कर्मा अच्छे हैं तो आपको शनि बहुत अच्छा फल देते हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट. इट्स the only planet with rings around it. It's the only planet which gives you the exact what to say, exact proportion of your good karmas. कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है उसमें. So let us start with number 1. Number 1, it's the ruling planet is sun. It represents the sun. It is also known as the father. It's also known as the king. King हम इनको इसलिए बोलते हैं कि नंबर का सबके ऊपर है ये. It has all the kingly attributes. People who are ruled by number 1, they have all the kingly attributes. राजा की तरह उनका आचार व्यवहार होगा. इस केस में we can't say कि money matters. Money, yes, of course it matters, but people who are ruled by number 1, उनकी financial backbone अगर थोड़ी weak भी हो, या कोई कारण से उनके पास उस समय बिल्कुल भी पैसे ना हो, फिर भी जो हम कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, वैसा वाला एटीट्यूड उनके अंदर हमेशा रहेगा, because it's because of their ruling numbers. These people, they are also known to have fatherly instincts, because people who are ruled by number 1, they have all the attributes as that of a father, as that of a guardian. They are kind, they are big-hearted, they always love to work for others. At the same time, they also have all the leadership qualities. कोई भी काम को करना हो, yes चलो करते हैं, without any fear, full of confidence, full of जज्बा होता है उनके अंदर काम करने का, दूसरों के लिए काम करने का. सूर्य कैसा होता है? सूर्य सबको इक्वल अमाउंट में रोशनी देते हैं. एनीथिंग व्हाट मे कम, आंधी तूफान आए, चाहे ग्रहण भी लगे, सूर्य की थोड़ी रोशनी तो हमें दिखाई पड़ती है, सूर्य ग्रहण में भी थोड़ी रोशनी तो हमें दिखती है. So it's like that. सन कभी छुट्टी पे नहीं जाता है. उसी तरह से people who are ruled by number 1, they hardly back out from any kind of responsibilities. They are people who are authoritative and they have good administrative skills, good organizers also, and always on the forefront. तो इस तरह के लोगों के साथ में we can always say कि people who are taking such high great responsibilities, at times they also seem to be emotionless to us, but it's not like that कि उनके अंदर emotions है ही नहीं. Definitely उनके अंदर emotions होते हैं, लेकिन उन लोग ऐसे position पे नहीं होते कि वो लोग emotional होके काम कर सके, because people who are burdened with many responsibilities,
उन लोग को बहुत बार अपने इमोशंस को साइड में रख के सबको साथ में लेके चलना होता है। राजा जो होता है ना, he has to take care of the masses. He can't only think about a single person. So he may seem emotionless to a certain person because of his harsh decisions. लेकिन उनके जो decisions होंगे वो सबकी भलाई के लिए होते हैं। घर में जो फादर होते हैं या जो भी अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, अथॉरिटेटिव मेंबर ऑफ द फैमिली, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। सब उनसे डरते हैं। पापा आ गए, चलो पढ़ाई करने बैठ जाओ सब कोई। पापा गुस्सा करेंगे, ऐसा मत करो। मम्मी भी कभी कभी पापा का डर दिखाएगी, बदमाशी करोगे ना पापा को कंप्लेन कर दूंगी, दैट वे। बट यस, इन लोगों की पर्सनालिटी कुछ इसी तरह से ही होती है। फिर एक नंबर जो है वो पैसे का भी नंबर है। So these people, yes, they are known to have good money in their life. They earn well, they spend well. जितना ये लोग कमाते हैं उसी proportion से ज्यादा ये लोग spend भी करते हैं। And they are always the initiators. They are the pioneers in doing something. इसमें मैंने कहा ना, जज्बा होता है काम करने। किसी काम को करने से लोग डरेंगे नहीं। They are the one who are the initiators. किसी भी काम को शुरू भी कर सकते हैं, नया काम, नए projects. These people, they won't think, give a second thought in doing that. Born leaders, good name and fame they get in life. But yes, as I said, everyone has a negative attributes, negative aspect also. Negative aspect इनका ये होता है, these people, they are also very short tempered. And since they are on the authoritative post, administrative decisions लेने की इनके पास capability होती है, तो yes, of course, इनके ego भी रहता है, तो they are egoistic at times, short tempered, and उसके साथ ही साथ में they always have a fixed attitude also towards something. एक बार जो चीज को सोच लिया ना, वही चीज उन्हें करना है। जल्दी से उस डिसीजन से वो लोग इजीली बच नहीं होना चाहते। Like look at the planet sun. सन जो होता है उनमें कितना तेज होता है। सूरज की गर्मी जब 11-12 बजे का जो सूर्य की रोशनी होती है वो एट टाइम्स हमें परेशान करने लग जाती है गर्मी में। वी चल बाबा कितना धूप है, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। वी वांट एसी, वी वांट कूलर्स, वी वांट हाई स्पीड फैंस दैट टाइम। उसी तरह से ये लोग होते हैं। जब ये अपने एकदम पीक पे होते हैं ना, तब इनका जो गुस्सा होता है, इनका जो अथॉरिटेटिव नेचर होता है, उसको सहन करना कई बार बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है। तो जो भी प्लैनेट होगा, जो भी नंबर्स होगा, उसके जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सब उसके प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स में ही छिपे होते हैं। So it's only that we have to relate to it. We have to understand that. And जो शाम का सूरज होता है, जब 5-5:30 के बाद जब सूरज की रोशनी थोड़ी हल्की होने लग जाती है, जब थोड़ी शाम होने लग जाती है, हम कहते हैं कि the sun is traveling towards the west, वो अस्त होने जा रहा है। ये लोग भी ऐसे ही होते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 40 इन लोगों में एक मैच्योरिटी आ जाएगी, एक ठहराव आ जाएगा, गुस्सा भी इनका कम हो जाएगा, इनका तेज भी कम हो जाएगा, इनका जो एंग्री अथॉरिटेटिव नेचर है उसमें भी हम देखें एक मैसिव डिफरेंस आ जाता है। यस, बिकॉज दे आर रूल्ड बाय सन। तो छोटी उम्र में, जब यंग एज में, जब इनको बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जब उनका प्रकाश बहुत ज्यादा फैलता है, सूरज का प्रकाश जब बहुत ज्यादा फैलता है, हमें गर्मी लगती है, वी टेल कि ये सन की गर्मी, अभी बाहर मत जाओ, जलाने वाली धूप है। इसी तरह से ये लोग भी होते हैं। यस, अच्छा, नाउ हु आर द पीपल हु आर रूल्ड बाय नंबर 1 और जिनका रूलिंग प्लैनेट सन है? पीपल हु आर born on the 1st, 10th, 19th and 28th of any month. They are ruled by the planet sun and they are also known as the father or the king, and they have all the kingly attributes. इनके लिए, इनका जो नेचर होता है ना, हम उसके लिए ये भी कह सकते हैं कि माई वे और हाई वे। इनका वही एटीट्यूड होता है कि हम जहाँ पे खड़े हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये एटीट्यूड उनके अंदर हमेशा रहेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज, ये एटीट्यूड उनके अंदर हमेशा रहेगा। ओके, ये तो था सिंगल नंबर 1 का। लेकिन जब किसी भी नंबर की एनर्जी बढ़ती है, किसी भी नंबर की एनर्जी, नंबर मल्टीप्लाई होके चार्ट में आता है
उस समय में उसके एट्रीब्यूट्स थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं। यस, तो मल्टीपल नंबर 1 होने से उसके एट्रीब्यूट्स कैसे रहेंगे? सिंगल नंबर का भी जैसे हमने डिस्कस किया। यस, डेस्टिनी 1 जब होता है तब उस समय में क्या होगा? वैदिक न्यूमरोलॉजी में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। सिंगल नंबर 1 होता है मतलब जब उसका बेसिक में 1 आ रहा है तब उसके एट्रीब्यूट्स उस समय में डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब डेस्टिनी में 1 आता है तब उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं दे बिकम द इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी। यस, आई डिडंट गेट दैट, सॉरी, फिर से बोलिए। हाँ जी, श्योर, आई टेल। जब ये जो मैंने एट्रीब्यूट्स बताए ना, ये एट्रीब्यूट्स उसके जब डेस्टिनी नंबर में आते हैं ना, व्हेन दे कम इन द डेस्टिनी नंबर, जब हम कहते हैं डेस्टिनी 1 है, भाग्यांक उनका जब 1 होता है, यस, these attributes they become an intrinsic part of their nature, मतलब वो उनके नेचर में हमेशा रहेगा। सपोज किसी का सिंगल नंबर 1 है और उनका डेस्टिनी नंबर 2 है, तो आफ्टर अ सर्टेन एज उनके अंदर जब वो मून वाली क्वालिटीज आना शुरू होगी तो कहीं ना कहीं पे उनके जो एट्रीब्यूट जो सूरज वाले थे ना, जो सन वाले थे, वो थोड़े थोड़े कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर उनका डेस्टिनी नंबर अगर 1 है ना, तो आफ्टर अ सर्टेन एज उनके जो नेचर में वो जो एट्रीब्यूट्स है ना, वो बहुत ज्यादा इम्बाइब हो जाएंगे, दे बिकम मोर यू नो पार्ट ऑफ देयर इंट्रिंसिक नेचर। मैं इसको और क्लियरली ये आप लोग और समझ पाओगे व्हेन वी कम टू दिस प्रेडिक्शंस पार्ट। जब हम चार्ट्स बनाएंगे ना, तब आप लोग उस डिफरेंस को बहुत इजीली समझ पाओगे। श्योर। या Okay. ओके, मल्टीपल 1 होने से क्या होता है? Significance of destiny increases manifold, negative qualities also gets multiplied. वो पर्सन क्या होता है ना, they start displaying dictatorship qualities. जैसे वो मतलब बहुत ज्यादा उनकी ईगो बढ़ जाएगी, they become डिक्टेटर टाइप्स, जो कह दिया सो कह दिया, मतलब उस हिसाब से वो बिहेव करना शुरू कर देते हैं। नेगेटिविटी जो उनके नेगेटिव पार्ट्स है सूरज वाले, वो उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इट बिकम्स वेरी वेरी प्रोमिनेंट। यस, लेकिन अगर उनका मल्टीपल 1 है उनके चार्ट में, अगर उनके चार्ट में सपोज 2 3 1 आ रहे हैं लेकिन डेस्टिनी नंबर उनका 1 नहीं है, जैसे 1 हो सकता है कि सपोज नवंबर वो बॉर्न है, 2 1 वहीं से आ गए उनके, अगेन उनके ईयर में 71 बॉर्न है, 1 1 वहां से आ गया, लेकिन उनका डेस्टिनी सपोज 2 है और उनका बेसिक सपोज 5 है, ठीक है, उनके वहां पे कहीं भी 1 बेसिक में भी नहीं आया, डेस्टिनी में भी नहीं आया, लेकिन 111 उनके चार्ट में आ रहे हैं। यस, इन दैट केस उनका वो क्या तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे या वो बिल्कुल ही अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बेसिक 1 या डेस्टिनी 1 वालों की तरह नहीं रहेगा, उनके कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत डिफरेंस आ जाता है। प्लस उनका टेम्पर भी उतना शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं रहेगा। इट्स नॉट दैट कि वो एक नंबर है तो जैसे तुरंत गुस्सा हो गया, उस तरह का उनका शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं रहेगा। गुस्सा उनको आएगा लेकिन दे डोंट हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस टू शो दैट एंगर। यस, लीडरशिप क्वालिटीज भी उनके अंदर कम रहेंगे, बिकॉज कॉन्फिडेंस ही नहीं तो लीडरशिप क्वालिटीज आएंगे ही नहीं डेफिनेटली उनके पास में। तो सिमिलर गोज द केस विद देयर फाइनेंशियल बैकबोन आल्सो। पैसे भी उनको लीडरशिप क्वालिटीज उतनी नहीं है तो मनी भी उनको उसी हिसाब से वो अर्न करेंगे। दैट वे ओनली एक होता है कि एक नंबर वाला एकदम किसी भी प्रोजेक्ट में तुरंत से घुस गया एंड दे स्टार्ट अर्निंग। दीस पीपल सिंस दे डोंट हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस, तो उनके पास मनी क्या तो अपनी मेहनत से धीरे धीरे उनके पास आएगा। जो एक सिंगल 1 डेस्टिनी 1 वालों के पास जैसे पैसे आते हैं उनके पास उस वॉल्यूम में पैसा नहीं आता है। यस, अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है। अच्छा, ये एक्सेप्शन वाली चीज मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, वरना आप लोग अभी कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। नरेंद्र मोदी जी का एग्जांपल लिया है, इज 17th of September 1950।
डेस्टिनी 5 एंड बेसिक 8। इस तरह से आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में अब ये कुछ नंबर 1 वाले एग्जाम्पल्स को के साथ में आप लोग चार्ट्स वर्कआउट कर सकते हो। Okay. Yeah. I think it was not confusing. I believe आप लोग को कहीं भी confusion हुआ हो, आप लोग इस पे आप मतलब just work out on it. थोड़ा सा एक बार confusing लगेगा, but जब हम लोग predictions part पे आएंगे ना, तो we will understand the difference. कई बार होता है कि हम charts देखते हैं कि वहाँ पे 1 तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस इंसान में confidence ही नहीं है। फिर हम सोचते हैं इनके चार्ट में 1 है, लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे नहीं है, इनके 1 वाले क्वालिटीज ही नहीं दिखाई पड़ रहे। इन दैट केस वी ऑलवेज हैव टू सी कि उनका जो 1 है वो कहाँ से निकल के आ रहा है, बेसिक नंबर या डेस्टिनी नंबर से निकल के आ रहा है। बिकॉज बेसिक एंड डेस्टिनी, दीज 2 नंबर्स आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। ये जो 2 नंबर्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी नेटिव की लाइफ में। तो बेसिकली दीदी हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी के बेसिक एंड डेस्टिनी में 1 नहीं है, बट he or she still has multiple ones in the chart or grid, तो उस केस में वीक होगा, 1 will be weak actually. 1 will be weak, Characteristic yes. of 1 will be weak. If it is there in 1, a basic number 1, then he will have that characteristic, but with age वो number 2 की तरह थोड़ा mature and soft हो जाएगा. But Yes. when that person has in destiny, like 1 in destiny, then that person will remain like that, aggressive and short-tempered, and all the leadership, all qualities will remain intact, Yeah. intrinsic, right? This is Yes. what we are saying. Yes. Got it. Yes. उसमें एक्सेप्शन जो मैंने देखा, एक्सेप्शन में क्या होता है, उसकी अपर लाइन जैसे 319 की अपर लाइन होती है ना, 9 नंबर के लिए हमेशा कहते हैं कि डिस्प्लेस द क्वालिटीज सिमिलर टू दैट ऑफ 1। Okay. नंबर 9 डिस्प्लेस क्वालिटीज सिमिलर टू दैट ऑफ 1। तो अगर एक्सेप्शन में ये होता है कि उनकी अपर लाइन में ईदर वी हैव 3 और वी हैव 9, बेसिक डेस्टिनी से 1 नहीं भी आ रहा है, still he will display the similar qualities as that of destiny 1. That was the exception part. Okay, so you are saying 3 or 9, they are like alternate number to 1. Yes, so yes. in case 1 is not there, but either 3 or 9 is there, so they'll have similar qualities. Like Yes. missing 1 will not be that, मतलब इतना missing नहीं होगा. It yeah. will somewhere get covered, right? Yes. Okay, got it. अब now got it. अब exception भी समझ में आ गया. Yeah. श्वेता जी, आपको कोई भी डाउट है? No ma'am, it's clear. अच्छा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखें कि वांट टू कंटिन्यू? मैम यहीं तक ही करते हैं। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं आप। अच्छा, एक और चीज मुझे पूछना था कि जैसे आई वाज ट्राइंग टू शेड्यूल क्लास थ्राइस अ वीक, दैट वाज थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। सो उसके लिए अगर आप लोग मुझे अपनी प्रायोरिटीज बता सकते हो, तो सैटरडे एंड संडे बीइंग अ वीकेंड क्लास, वीकेंड में जनरली शाम को सब बिजी होते हैं। सी आई डोंट माइंड टेकिंग अ क्लास इन द इवनिंग, गिवन मी अ चॉइस कि आप लोग सब कंफर्टेबल हो, आई कैन टेक अ क्लास इन द इवनिंग आल्सो। और अगर आप लोग बोलोगे थोड़ा लेट आफ्टरनून में लेने, जैसे 3:30 या 4 o'clock लेने, इज फाइन विथ मी आल्सो। मैम वैसे रेगुलर टाइम क्या रखने वाले हैं हम? Regular time was planning to take around 3 or 3:30 a class for weekend classes, and for Thursday I was planning 8 o'clock in the evening only, it's being a working day. Okay. हाँ जी. Yeah, Thursday 8 is fine. So Thursday 8, and आपके तो Saturday Sunday को afternoon will suit you, right? That's what you're saying. Because being a weekend थोड़ा सा सबके ना ये थोड़ा सा वो गीता जी भी आ गए हैं. गीता जी भी आ गए हैं. हेलो गीता जी. Sorry Rashmi ji for joining late. थोड़ा काम आ गया था इसलिए नहीं कर पाए. कोई बात नहीं, it's absolutely okay. We just finished our class for today, so you are most welcome to join the conversation, the ending conversation. We were only planning on the different choices of timings of the classes, because we are planning thrice a week, Thursday, Saturday and Sunday. So Saturday, Sunday being a weekend class, so I was planning to take it by 3 or 3:30 in the afternoon, because शाम को सब free हो जाएंगे,
किसी के कुछ भी plans हो सकते हैं because of the weekend. Ma'am, but Right, yeah. noon mein I think I have a problem. 3:30 to, I mean, I have different classes also by noon. Okay. So by evening only I can shift it, but you can give me evening time on prior, like 6:30, 7 or 7:30, like half an hour or 1 hour prior on weekends. Okay. No, Actually, weekend में actually evening classes I was not very keen on yeah, them. थोड़ा problem उसमें हो जाता because मेरे last batch में ऐसा एक हो गया था problem. Weekend classes में थोड़ी सी दिक्कत रहती है. So if you can take it in the morning time, जैसे अगर हम लोग 12 साढ़े 12 ले लें तो we'll finish on before lunch. Ma'am, actually you know मैंने पहले भी बोला था as हाँ, you मेरा had told baby that is earlier. Yeah, your my baby baby is is small. small Yeah. ना, तो उसकी वजह से I have problem. So if we start after 2:30, थोड़ा after post lunch, 2:30 Ma'am, to I can make it possible by 5:30 or 6 to 7, 5:30 to 6:30. okay. नहीं 5:30 would be slightly late, श्वेता जी. थोड़ा सा पहले हम करते तो ठीक रहता ना. We because Ma'am, actually 4 o'clock I have already classes. I am learning more in tarot. So I understand. have joined, yeah, 4 to 5:30 चलेगा उसका, but I am ready to take on weekends continue में classes like 5:30 या फिर आप नहीं तो फिर 6 to 7 या 5:30 to 6:30, like by 8 मुझ नहीं मतलब वो मुझे चल रहा है थर्सडे पे by 8. बाकी या मॉर्निंग मुझे नहीं सूट हो रहा है बिकॉज आई ऑलरेडी हैव सेशंस रीडिंग्स ऑफ माय टैरो ना, और फिर Okay. बेबी है, दैट्स व्हाई. नहीं नहीं, वो तो आपने शेयर किया था, वो प्रॉब्लम आपने शेयर हाँ. की थी पहले. आई अंडरस्टैंड. या अनिल जी, यू हैव आपके कुछ आप कुछ कहोगे इस बारे में? आर यू कंफर्टेबल विद दीस टाइमिंग्स 5:30? अगर कुछ भी नहीं वर्कआउट होगा तो 5:30 इज फाइन. आई विल मेक द एडजस्टमेंट बिकॉज उधर आई थिंक बेबी का प्रॉब्लम है, तो आई विल मेक इट. प्रेफरेबली वही था जैसे आप कह रहे थे, वीकेंड्स में थोड़ा इवनिंग का लोगों का होता है, देयर आर सर्टेन कमिटमेंट्स. अच्छा, इवनिंग वीकेंड्स में हम कितना 1 आवर क्लास ही लेंगे ना दीदी? नहीं, वीकेंड्स में आई वाज प्लानिंग फॉर अ लॉन्गर क्लास बिकॉज़ अभी तो जैसे अच्छा, एट्रीब्यूट्स ओके. में ही हम कर रहे हैं. जब प्रेडिक्शंस पार्ट आएगा ना, आप लोग का खुद का मन नहीं करेगा उठने का उस समय पे. नहीं पता है, वो भी आप हाँ. पढ़ाओगे तो फिर ऐसे ही होगा. आप सही कह रहे हो. इंटरेस्टिंग. तो आज तो जैसे मेरे अपने लोग भी काम थे. मृदुला जी ने भी ज्वाइन नहीं किया, मतलब शी कुडंट ज्वाइन. गीता जी वाज आल्सो अनेबल टू ज्वाइन. तो इसलिए मैंने 1 घंटे में इसको वाइंड अप कर लिया. लेकिन बट एटलीस्ट वी हैव टू कंटिन्यू फॉर 75 मिनट्स, सो आई वांट. राइट. 75 अच्छा मिनट्स तो होना ही श्वेता जी, चाहिए. आपकी जो क्लासेस है ना टैरो की, तो वो क्या मतलब अभी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी कि वो ऐसे ही अभी 15 बराबर? डेज में मैम, 15 डेज चलेंगी वो मैंने अभी तक पता है उधर भी आई थिंक मैंने फी इसीलिए ही नहीं दिया है, जस्ट उनको होल्ड ऑन करवाइए सीट बिकॉज आई हैव टू फर्स्ट यहाँ पे टाइम पूरा मुझे करना था. बट शी इज फिक्स्ड एट हर टाइम दैट शी विल टेक 4 क्लास, वो 4 ही लेंगी. सो आई यूज्ड ओके, टू तो फ्री हम लोग 3:30 ऑलवेज अंडरस्टैंड. ऐसा. ओके, तो हम लोग जैसे 2:30 to 4 क्लास नहीं कर सक रहे ना. यू आर टेलिंग 2:30 to 4 इज द प्रॉब्लम फिर फॉर वो यू. मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा. इवन ओके. रीडिंग्स होती है मुझे तो मैं उसको पेज को क्लोज नहीं कर सकती ना मेरे. आई हैव राइट. सेशंस रीडिंग्स, तो मुझे वो उस टाइम पे देनी पड़ेंगी. अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि हम एक बार अपनी क्लास को 5:30 या से शुरू करते हैं. फिर जैसे आई बिलीव आपका टैरो वाला सेशन है ना, मेरे क्लास के पहले ही खत्म हो जाएगा. आई मीन मैम टू से 15 डेज का कोर्स है वो. हाँ, तो 2 वीक्स में इट विल गेट ओवर. 2 वीक्स के लिए हम ये टाइमिंग रख लेते हैं. बट आई वुड प्रेफर शिफ्टिंग इट बैक टू 3 to 3:30, मतलब 3 साढ़े 3 बजे. बिकॉज ना उस समय आप लोग भी शांत रहोगे. एक शाम होने के बाद ना सबके घर में ना चाय पानी नाश्ता एंड थोड़ा छुट्टी वाला माहौल हो गया. क्या हो गया, कैसी पोकिंग आएगी आप लोग को. आप लोग का हो हाउ गया लॉन्ग क्या? आवर क्लासेस इज गोना बी? अपना तकरीबन 1.5 महीना तो चलेगा. ओके. हाँ जी. Because 3 classes a week, if you take 15 classes, so it comes to 6 weeks हो गया ना, 1.5 महीना हो गया. ठीक है, तो आपका तो 15 डेज में ओवर हो जाएगा. उसमें मेरे शायद 2 सेशंस ही आएंगे, 2 वीकेंड्स ही आएंगे. उसके बाद वी कैन शिफ्ट बैक टू दैट 3 o'clock का टाइमिंग, 3 to 3:30. या मैम ठीक है. सो एक बार हम लोग ऐसे इसको हाँ वर्कआउट. 3:30 वी कैन कूल 3:30 कर सकते हैं हम.
या लाइक आफ्टर माय टैरो कंप्लीट तो फिर हम कर सकते हैं 3:30 से। हाँ हाँ, तो इजी रहेगा सबके लिए, आप लोग को समझना भी इजी रहेगा ना, बिकॉज इट्स अ वेरी व्हाट टू से लॉन्ग एज वेल एज सेंसिटिव कोर्स आल्सो, आपको बहुत ध्यान से समझना होगा इसको। मैम तो फिर इसको हमेशा के लिए 3:30 नहीं कर सकते? व्हाई वी आर गोइंग ऑन थर्सडे इवन 8, मतलब हमेशा ही एक स्केड्यूल बन जाता है ना फिर कि हाँ 3:30 पे देयर इज क्लास तो वी कैन डू। I understand, लेकिन Thursday being a working day, Anil ji comes back home by 7:30, तो थोड़ा 15-20 minutes का वो fresh होके he joins at 8। ओके ये है, हाँ जी। और गीता जी के भी छोटे बच्चे हैं, तो she also requires some time on the working weekdays, ओके इसलिए बोल के इसको ऐसे रखा। मृदुला जी ने भी मुझे रिक्वेस्ट किया कि 3 बजे के पहले शुरू मत कीजिएगा, बिकॉज उनका भी, बिकॉज शी ऑल्सो बीइंग अ प्रोफेशनल, सुबह का टाइम उनका बिजी है एंड उसके बाद लंच का रहता है, ऐसे करके सबका वही टाइम सेट हो रहा था। सो 3:30 वुड बी फाइन, आई बिलीव। गीता जी वांट टू से समथिंग, आप कुछ कहना चाह रहे हो? Yeah, I will just say कि ये जो 2 weeks आप 5:30 क्लास रखोगे, तो as you know my own sessions are going on and they start by 6:30, so I will join for 1 hour and बाकी का I will see the recording and follow up. ठीक है, सिर्फ 2 हफ्ते में इनका भी हो जाता है। Yeah, no problem. ठीक है। एंड ऑन थर्सडे मैम यू विल टेक क्लास फॉर 1 hour ओनली ना? Thursday I'll take for 1 hour because I can't sit, हाँ I can't sit more because 9 के बाद तो फिर मेरा dinner and all सब रहता है, तो 8 to 9 will be preferable, है ना? वीकेंड लेकिन थोड़ा सा लंबा चलेगा, मैं इसीलिए एडवांस में बोल दे रही हूँ, बिकॉज वीकेंड पे I don't have any problem because मेरे यहाँ पे वीकेंड वैसे भी I used to go out on Monday because मेरे हस्बैंड का जो वीक ऑफ रहता है वो मंडे को रहता है, सो मुझे इतना उसका नहीं है, बट ऑफ कोर्स या इसमें रश्मि जी बहुत अगर प्रॉब्लम होता है तो मैं 8 का 7:45 भी कर सकता हूँ ऑन थर्सडे, बाकी संडे वीकेंड इज फाइन, सो वी कैन वर्क आउट अगर इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस थर्सडे लेट अस जॉइन एट 7:45 ओनली। परफेक्ट, लेट अस जॉइन, सो इन केस आप लोगों के डाउट्स होंगे तो वो भी क्लैरिफाई कर लेंगे पहले। या ठीक है, हाँ जी। अच्छा, तो आप लोग का सबका आई वुड से कि आप लोग को जो मैंने वैदिक ग्रिड दिया है, आप लोग उस पे चार्ट्स बनाओ एंड आप लोग को नंबर्स के एट्रीब्यूट्स, ऑल्दो यू ऑल ऑफ यू नो, जो चार्ट्स बनाने से क्या यू गेन कॉन्फिडेंस ऑन दैट, खुद को अच्छा लगता है। ठीक है, या सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। थैंक यू गीता जी, थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू अनिल रश्मि जी, I will see the recording, और कुछ होगा तो जरूर पूछूंगी आपसे। वैसे भी आपको बहुत परेशान करती हूँ। नहीं, कोई परेशान की बात नहीं। रियली फील सो ब्लेस्ड एंड एलेटेड कि आई हैव सच नाइस फ्रेंड्स who always ask questions and keep my grooming on, because आप लोग जब questions पूछते हो तो ऐसा नहीं कि हम लोग को सब कुछ आता है, we also have to refer back either to our seniors or to books or our notes, या कई बार हम सोचते भी हैं कि हाँ ये चीज ऐसे हुआ है तो we relate to something else, so it always gives us a new learning, so it's a blessing if you have such people who keeps on asking you questions. I really feel very blessed. मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग questions पूछो। yes definitely. So thank you everyone. Atma Namaste. Yeah, see you all on Thursday. Bye. Yeah, bye. bye bye, good night. Good night.